तो बच्चों, आज हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन किसने दिया था? तो पॉलिंग ने दिया था 1931 में। क्या ज़रूरत पड़ी पॉलिंग को हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट देने की? इसलिए दिया था कि कुछ बातें जो हिटलर एंड लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थियरी जब 1927 में दिया था, तो कुछ बातों को समझा नहीं सके, कुछ बातें समझा नहीं पाए, इसलिए इसको थोड़ा रिफाइन करना पड़ा, जिसको किया था 1931 में पॉलिंग ने। तो आज हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। द कॉन्सेप्ट ऑफ hybridization कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एनालॉगी। एनालॉगी, व्हाट इज द एनालॉगी? Suppose we have this two color glass, one is red color, another is yellow color. If you mix these two color, suppose I am mixing, see, so I mixed this two color, yellow color and red color. I am getting 2 glass of orange color. This orange color, we can say this is a hybrid of yellow color and red color both. Means both component are present here. The color of both appears here. So this orange color we can say is a hybrid of these two color. Hybridization is a familiar process in nature also. It involves the mixing of two closely related but different entities to produce another entities. For example, a mu, that is a biological hybrid of horse and donkey. So according to Hitler and London, who gave this valence bond theory, if you consider that this carbon has 6 electron, 1s2, 2s2, 2p6. This paired electron can't form bond, means this carbon form only 2 bond because it have two orbital containing half filled. He told, Hitler and London, he told the half filled orbital overlap and form bond. So it is correct for the homonuclear diatomic molecule like N2O2, but in the formation of CH4, suppose we consider the formation of CH4, there is a 4 bond between carbon and hydrogen. 4 hydrogen attached with this carbon. There is a 2 half filled orbital in carbon, so it can form 2 bond, means covalency is 2, as told by Hitler and London. Pauling refined this concept of bonding by saying this carbon goes in the first excited state by taking some energy from the atmosphere, and the 2s electron jump into the 2p. Why it jump into 2p? Because some electron gained by the 1 electron of 2s and jump into the 2p. So the first excited state I shown here, 1s2, 2s1 and 2p3. Now there is a 4 unpaired electron, 1 unpaired electron in 1s and 3 unpaired electron in the 2p, sorry 1s nahi 2s and 3 unpaired electron in the 2p. तो अब 3 unpaired electron 2p में है, 1 unpaired electron 2s में है, तो अब 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है। नंबर ऑफ द कोवैलेंसी इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल।
number of unpaired orbital. If 3, then covalency is 3. Here in methane, carbon form 4 single bond with the hydrogen. Nowadays we know the bond angle also, but suppose if we consider the valence bond theory given by Hitler and London, there is a overlapping between, I want to represent with the red pen, there is an overlapping between 2s and 1s, 2s of carbon and 1s of hydrogen, and rest is pz, px and py. These are 3 orbital present in nitrogen containing unpaired electron. This px overlap with the 1s, pz overlap with the 1s of another hydrogen, and py overlap with 1s of third hydrogen or fourth hydrogen, whatever. So this, what is the structure of the p orbital? We know that this p orbital are at right angle to one another. सारे p ऑर्बिटल एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, इनके बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री होंगे. अब अगर इसको कंसीडर करें तो 1s और py के बीच में जो बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी. px और 1s के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यानी प्योर ऑर्बिटल है एटम का. यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक बॉन्ड बच्चों यहां बन रहा है 2s और 1s के बीच में. मैंने 2s को बड़े सर्कल से दिखाया है, 1s को छोटे सर्कल दिखाया है. अब अगर ये बॉन्ड एंगल को देखा जाए किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन, दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एंगल ये 90 आना चाहिए, क्योंकि p ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल जो है एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, तो इनके बीच बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए, जो कि नहीं होता है. लीबेल और वांट हाफ ने ये मेजर किया था बॉन्ड एंगल मीथेन का, वो बॉन्ड एंगल आया था 109 डिग्री 28 मिनट, और इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहा. 109 डिग्री 28 मिनट ये बॉन्ड एंगल आया. तो अगर हम इसको मान लें, वैलेंस बॉन्ड थियरी को हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बगैर कंसीडर करें, तो यहां बॉन्ड एंगल 90 होगा. ये जो एक हाइड्रोजन इससे 180 डिग्री पे जुड़ा होगा, बाकी 3 हाइड्रोजन एक दूसरे के 90 एंगल पे होंगे, जो कि नहीं होता है. सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट. और ये ज्योमेट्री, इसका शेप होगा या ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल तो ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, या पॉलिंग ने इसको कैसे रिफाइन किया? तो पॉलिंग ने ऐसे सोचना शुरू किया कि भाई ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या अमोनिया पिरामिडल है, तो ज्योमेट्री का क्या रिलेशन है, आखिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ज्योमेट्री का क्या रिलेशन है? तो तभी जो है इस कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में हम ऐसे समझ लें, 2 कलर को मिक्स करते हैं. जैसे ऑरेंज और येलो कलर को हमने मिक्स किया, नया येलो और रेड कलर को मिक्स किया और नया ऑरेंज कलर मिला. अगर एक ग्लास येलो कलर एक ग्लास रेड कलर में मिक्स करते हैं तो 2 ग्लास ऑरेंज कलर बनते हैं. 2 ग्लास, जैसा कि हमने आपको एक्टिविटी में शो किया है, 2 ग्लास ऑफ ऑरेंज कलर वी गॉट. likewise orbital of the central atom, what I am saying, orbital of the central atom mix together and form same number of hybrid orbital of same symmetry and same energy. मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा यहां आप समझने की कोशिश करिए. लेट्स टॉक अबाउट द कार्बन. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कार्बन है 1s2 2s2 2s1 2p3. अब
अगर एनर्जी लेवल के क्रम में बनाया जाए, एनर्जी लेवल के क्रम में बनाया गया, सबसे कम एनर्जी है 1s की, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। उससे ज़्यादा एनर्जी है 2s की, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। 2s की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 2p की एनर्जी इससे भी थोड़ी ज़्यादा है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप हमसे पूछें बच्चों, अगर आप हमसे पूछें कि पहले जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था तो इसकी एनर्जी इतनी थी या इससे कम थी, तो मैं आपको अनुमानतः बता सकता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें उसको स्टेबल बनाएगा। जितनी एनर्जी अभी है उससे थोड़ी कम एनर्जी होगी। पहले एनर्जी कहीं यहां होगी इसकी, लेकिन इससे तो काफी ज्यादा होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको एनर्जी मिलने से थोड़ा सा 2s का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, और दूसरा वाला तो इतना बढ़ गया कि 2p में जाके पहुंच गया। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये जो 4 ऑर्बिटल हैं वो किसके हैं? एटम के ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और चारों हाफ फिल्ड हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये चारों मिक्स होंगे। कौन से? कार्बन के चारों ऑर्बिटल मिक्स होंगे। 2s का 1 ऑर्बिटल, 2p के तीनों, 2px, 2py और 2pz अब मिक्स हुए। अब इनका जरा शेप बना लेते हैं। ये हो गया मान लीजिए px, ये हो गया pz, ये हो गया py लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। pz, py एंड px एक दूसरे के 90 एंगल पे, राइट एंगल पे हैं। टू मच हॉट, बहुत गर्मी है भाई। तो एक दूसरे के 90 एंगल पे होते हैं, हमने आपको बताया था पहले। तो और इनकी मिक्सिंग किससे हो रही है? जो इससे कम एनर्जी का है, 2px है, 2py है, 2pz है, इनसे कम एनर्जेटिक है ये 2s। और शेप देखिए, इनकी मिक्सिंग होगी तो कितने बनेंगे? 3 ऑर्बिटल ये हैं और 1 ऑर्बिटल ये हैं। मैंने आपको इसका एनालॉजी देते समय कहा था, 1 ग्लास येलो कलर और 1 ग्लास ऑरेंज कलर, सॉरी रेड कलर आप मिक्स करते हैं तो 2 ग्लास बनता है। 2 ग्लास वाटर मिलाएंगे तो 2 ग्लास मिक्स वाटर या हाइब्रिड कलर वाटर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे भी जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 3 ऑर्बिटल p के, 1 ऑर्बिटल s का, जो मिक्स होकर के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। शेप क्या होगा उनका जान लीजिए। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, इसमें किसका प्रभाव ज्यादा है, रेड का या येलो का? आप देख पा रहे होंगे कि अगर येलो और रेड मिला रहे हैं तो इसमें ऑरेंज जो बन रहा है उसमें रेड का इफेक्ट ज्यादा है। तो जो भी मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनेंगे उसमें p का इफेक्ट ज्यादा होगा, p का प्रभाव ज्यादा होगा। इसीलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो p जैसा ही बनाएंगे। ये एक लोग, ये 1 ऑर्बिटल हो गया, 4 बनेंगे। 4 कहां अरेंज होंगे? ये टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। हमने क्या किया था, या साइंटिस्ट ने क्या किया था, पहले ये मालूम है इनको कि ये टेट्राहेड्रल होते हैं, तो इन्होंने कहा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके? कार्बन के। किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल? कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होंगे। मिक्स होकर के उनकी सिमेट्री सबकी एक जैसी होगी। आप कहोगे कि आपने जो है थोड़ा छोटा बनाया है, कुछ बड़ा बनाया है। मैं ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, मैं एक बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक बराबर बनाने का मतलब है सब एक जैसे हैं, अब भेद नहीं है। अब एक जैसे बनाने के लिए हम इसको ऐसे बनाते, फिर से बनाते हैं। एनर्जी 1s की एनर्जी अभी भी बहुत कम है, बाकी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से कम है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में चारों ऑर्बिटल की एनर्जी अब बराबर हो गई। कौन से चारों ऑर्बिटल? 3p और 1s, सबकी एनर्जी बराबर, यानी ये डिजेनरेट ऑर्बिटल हो गए। और इनका नाम भी ऐसे ही होता है। 1s मिला और p के 3 ऑर्बिटल मिले तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहलाता है। तो इसको भी नाम देंगे sp3, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp3, तीसरा भी sp3 और चौथा भी sp3। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट sp3 पे चले गए, कोई और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है क्या? मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, बाकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। अब ये sp3 सबके नाम है क्या? सबके नाम sp3 हैं। कितने sp3? 4 sp3। क्यों?
क्योंकि 3p और 1s की मिक्सिंग हुई है और 3p और 1s टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है, अब ये समझ गए, पहले एनर्जी का लेवल ऐसा था, अब एनर्जी का लेवल ऐसा है। अब ये ना s है ना ये p है। भाई हमने आपको एनालॉजी दिया था, हमने कहा था ये कौन सा कलर है, क्या ये रेड है, क्या ये येलो है, ना ये रेड है ना ये येलो है, ये हाइब्रिड है। तो इसी तरह क्या ये s ऑर्बिटल है, नहीं। क्या ये p ऑर्बिटल है, नहीं। यह sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी सबकी बराबर है, सबकी बराबर, इसकी इससे इसके बराबर, इसकी इससे बराबर, यानी सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल डिजनरेट हैं, सबकी एनर्जी सेम है। अब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये स्पेस में कैसे अरेंज है भाई, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में कैसे अरेंज होंगे, तो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, तभी उनके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। अब ये सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के 1s के साथ हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर गए, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर गए और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो याद रखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, उन्होंने ये कहा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा। अगर ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं हैं, उनके साथ भी अगर ओवरलैप करें, जैसे कि 1s के साथ ओवरलैप करेंगे, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इतना समझ गए ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर हम शुरू करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, बंद करो। ये देखिए हमारे पास एक p ऑर्बिटल है, सपोज कर लीजिए ये p ऑर्बिटल है ये, और ये एक s ऑर्बिटल है, स्फेरिकली शेप है, डम्बल शेप है। हमने आपको बताया होगा या आपने पढ़ा होगा कि ये डम्बल शेप होता है p ऑर्बिटल, और ये s ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है। अगर इनकी आपस में मिक्सिंग हो जाए तो कितने ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल है, ये 2 p ऑर्बिटल नहीं है, ये सिंगल p ऑर्बिटल है। अगर ये p ऑर्बिटल इस s ऑर्बिटल से मिक्स हो जाए तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये p ऑर्बिटल किसका है या ये s ऑर्बिटल किसका है, ये s ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम का, ये उसी सेंट्रल एटम का p ऑर्बिटल है। अब इनकी मिक्सिंग क्यों हो गई भाई, इसी को तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इनकी एनर्जी में अंतर है क्या, ऑब्वियसली अंतर है। ये s है, ये p है, s कम एनर्जी का होगा ये इस p से, तो ये S2s है, ये p जो है 2p है। सपोज कर लीजिए, क्या ये 3s और 2p हो सकता है, नहीं। सेम वैलेंस सेल के ऑर्बिटल मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाते हैं, यही हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। तो सपोज 2s और 2p मिक्स हो गए, आपस में मिक्स हो गए, तो नए ऑर्बिटल बने। अगर नए ऑर्बिटल बने तो उनका शेप मैं बता रहा हूं आपको। एक ऑर्बिटल का शेप ऐसा था। अब ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मान लीजिए जहां मैं पकड़ा हूं इसको, ये न्यूक्लियस है और दूसरा लोब जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को दिखाता है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियस के दूसरी तरफ थोड़ा लोब छोटा है, यानी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इस लोब की तरफ कम है। तो एक लोब बड़ा, एक लोब छोटा, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसी तरह का एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होंगे। चलिए उसको हम बोर्ड पे देखते हैं। Okay, so there is a one p orbital, this is p orbital, and one s means first s, that is not belong to the first cell, means in number that is one s orbital, this is s,
this may be 2s, then this one is 2p. This is of 3s, then this is the 3p. This is a p orbital. So if this s orbital mix into the p orbital, then there is a two hybrid orbital. One hybrid orbital I am drawing here. This is one lobe, means outside this nucleus along this lobe the concentration of electron is more, and one is a small lobe as I shown here. This one is larger lobe where electron lie or within this circle electron present mainly. This is the smaller one, means electron is less this side of the nucleus. So this is the larger lobe where mainly electron present in this side of the nucleus. This is the smaller one, means smaller lobe represent the less amount of less electron density present this side of the nucleus. So this is a hybrid, this is a hybrid orbital. Another hybrid orbital. अब इसको कहाँ अरेंज करें? क्या ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या? एक लोब दूसरा लोब ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या? तो ये एक दूसरे के 90 एंगल पे हो जाएंगे क्या, और 120 एंगल पे अरेंज करें क्या? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, जिससे उनके बीच रिपल्सन कम हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जगह है न्यूक्लियस के बाहर, तो ये एक दूसरे से दूर तभी होंगे जब भी आप ऐसे देखिए, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, मतलब ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसका नाम क्या है? sp, स्मॉल s स्मॉल p। तो एक sp ऑर्बिटल ये, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी। एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। p ऑर्बिटल जो हम इसमें मिक्स हुआ है, ये किसके ऑर्बिटल हैं? ये सेम एटम के ऑर्बिटल हैं। आप ये मत समझिएगा एक एलिमेंट के एटम का p है, ये दूसरे एलिमेंट के एटम का s है, ऐसा नहीं है। सेम एटम के ये ऑर्बिटल हैं। तो इनकी एनर्जी ये है, p की एनर्जी ये है। जब मिक्स हो गए तो इनकी एनर्जी कहीं यहाँ है। दोनों की एनर्जी जो है, दोनों ऑर्बिटल को हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं, दोनों की एनर्जी यहाँ है। यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों की, या 3 बन रहे हैं तो तीनों की, 4 बन रहे चारों की, 5 बन रहे पांचों की, और स्पेस में वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि मिनिमम रिपल्सन मिले और मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। 180 डिग्री एंगल पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, किसमें ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 ओके 2p0, इसमें p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सारे पेयर्ड हैं, तो इसको तो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये एक्साइट होगा। अच्छा, ये एक्साइटेशन की एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, उससे काउंटर बैलेंस हो जाएगा ये एनर्जी। तो बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 1 इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जेटिक हो गया और 2p में ये जंप कर गया। अब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। अब एनर्जी देखिए दोनों की, 2s की एनर्जी कम है लेकिन 1s से ज़्यादा है, और 2p की एनर्जी, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2p की एनर्जी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इनकी मिक्सिंग हो जाती है और 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए s और p के मिलने से। अब इसको हमने ऐसे डंबल शेप टाइप का क्यों बनाया? मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेड और येलो के मिलने से ऑरेंज बन रहा है, इसमें इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रेड का है, इसीलिए शेप भी p और s के मिलने से शेप जो है वो p की तरह बना है, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा। ओके, देन दोनों की एनर्जी बराबर, ये sp है ये sp है, तो इसमें s कितना है? आधा s है आधा p है, यानी ये दोनों का हाइब्रिड है।
S का भी इसमें अमाउंट है, P का भी अमाउंट है। कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए थे? 2 ऑर्बिटल। कितने नए ऑर्बिटल फॉर्म हुए? 2 ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी में क्या अंतर था? यस, इनकी एनर्जी में अंतर था क्या? अंतर है क्या? नहीं, ये सारे सेम सिमेट्री के हैं, सेम एनर्जी के। सिमेट्री के बारे में बात कर लें, जो S था वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और P जो है डंबल शेप होता है। लेकिन जब मिक्स हुए तो दोनों एक सिमेट्री हो गई। एक की सिमेट्री ये, दूसरे की सिमेट्री भी वैसे ही। मैं अलग अलग साइज का बना दे रहा हूं, अलग बात है, लेकिन सेम सिमेट्री है, सेम साइज, शेप साइज सेम है। इसका मतलब ये दोनों, एक sp ये है, एक sp। स्पेस में कैसे अरेंज होंगे? लीनियर अरेंजमेंट होगा। ओके, तो इसको देख लेते हैं, BeCl2 का फॉर्मेशन। ये ऑर्बिटल अभी, ये अलग ऑर्बिटल है, ये अलग, एक साथ बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी सेम है, एनर्जी अलग अलग है। ओके, अब क्या हुआ, एक S और एक P मिक्स हो गया। अब दो सेम एनर्जी के, मैं अलग अलग ऊपर नीचे बना देता हूं ताकि आपको लगे कि एक की एनर्जी ज्यादा है, एक की एनर्जी कम है। ओके, ठीक है। अब इनकी मिक्सिंग हुई तो बन गया 2 sp, दोनों की एनर्जी बराबर और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। इसी को मैं आप रिप्रेजेंट कर रहा हूं और BeCl2 बना रहा हूं। पहले Cl को देख लेते हैं। Cl में कितने इलेक्ट्रॉन? 17, 1s2, 2s2, 2p6, 6, 3s2, 3p5। अब 3p में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर फिल करें अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, सिंगली ऑक्युपाइड देन पेयरिंग आकर, तो एक ऑर्बिटल इसका अनपेयर्ड है, जिसमें हम इसका यूज करेंगे। भाई कौन सा ऑर्बिटल है? तो जो ऑर्बिटल अनपेयर है उसको हम pz कंसीडर कर रहे हैं। pz क्यों कर रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए क्या हुआ क्या, बेरिलियम के पास 2 ऑर्बिटल थे। कौन से? 2s और 2p। 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो 2 इलेक्ट्रॉन थे। p के पास कितने थे? तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब क्या हुआ, तो बेरिलियम को कुछ कहीं से एनर्जी मिली तो एक इलेक्ट्रॉन इसका p में जंप कर गया। अब क्या कंडीशन है? 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या इसकी एनर्जी बराबर है? नहीं, 2s की एनर्जी कम है, 2p की ज्यादा है। तो पाउलिंग क्या कहते हैं? पाउलिंग कहते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल बेरिलियम के मिक्स हो गए, मिक्स होकर के नए 2 ऑर्बिटल बनाए और इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम sp, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी नाम sp। तो एक लोब उसका छोटा वाला मिटा देते ताकि सिंपली समझ सकें। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, चलिए रहने देते हैं। अब 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 3pz में एक इलेक्ट्रॉन आपने अभी देखा था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, बाकी सारे पेयर थे। अब 3pz क्यों कह रहे हैं, 3px क्यों नहीं कह रहे? 3px आप कह सकते हैं, चलिए खैर। अब क्लोरीन का हम 3pz बनाएंगे या 3p बनाएंगे जो इनसे शेयर करेगा। ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है या अनहाइब्रिडाइज्ड? हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट यहां यूज नहीं किया गया, इसको अनहाइब्रिडाइज्ड आप मान लीजिए। ये है pz। pz क्यों कह रहे हैं? यहां पे है क्लोरीन Cl, और अगर एक लाइन खींच दें हम क्लोरीन और ब्रोमीन के न्यूक्लियस को लेते हुए एक सीधी रेखा खींच दें, स्ट्रेट लाइन खींच दें, तो इस एक्सिस को कहते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस, इस एक्सिस को कहते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस, और इस एक्सिस को हम मानते हैं z एक्सिस। तो इसीलिए इसके अलोंग जो p ऑर्बिटल होता है उसे हम pz कह देते हैं। अब हम इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस को x एक्सिस मान लेंगे तो इसके अलोंग जो ऑर्बिटल होगा वो px होगा। तो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, देखिए किसके किसके बीच में? pz क्लोरीन के और किसके बीच में? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। मैंने आपको बताया था कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो
किसी के साथ इन्वॉल्व हो तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। दूसरा, एक और क्लोरीन है भाई, एक और क्लोरीन है, तो भाई इसको भी बॉन्ड बनवा देते हैं। लाइए, ये दूसरा वाला PZ है, मैं एक लोब नहीं बना रहा हूं, आप समझ लीजिएगा इसके बाद है। ये देखिए, यह भी बॉन्ड सिग्मा ही है। तो बेरिलियम के 2 बॉन्ड हुए क्लोरीन से, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का और PZ क्लोरीन का, दूसरा sp PZ क्लोरीन का और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम के, और दोनों ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। और स्पेस में चूंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 एंगल पे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी लीनियर होगा, और लीनियर एक्सपेरिमेंटली पाया भी गया है। दैट्स ऑल अबाउट द sp हाइब्रिड हाइब्रिडेशन।